We are, sorry, I'll do it again. In our days, communication was not a very good requirement and we were struggling to have a career. We were a part of that generation which believed in breaking rules. UP T20 League has given a good platform to them to show their talent. UP का माहौल भी बदल गया है. So youngsters की energy जो है वो positive direction में जा रही है. जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो आप अपने पैशन के लिए खेलते थे, not for money. But now you have money, so you can make a good career. And once you hang up your boots, then you have a lot of avenues in cricket. The element of fairness is there. And when the element of fairness is there, the competition is tough. And when the competition is tough, good cricket comes. इस बार की तो टैगलाइन भी है, क्रिकेट का महासंग्राम. Hello everyone, welcome to another episode of Long Off Lounge. Today we have with us Mr. Devendra Singh Chauhan. For those of you who don't know, he is the चेयरमैन ऑफ यूपी T20 लीग. एंड सर मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो इतनी लंबी लिस्ट है आपके अचीवमेंट्स की, आपकी क्वालिफिकेशंस की. आई विश मेरे फादर ये एपिसोड ना देखें और एल्स ही स्टार्ट कंप्लेनिंग कि देखो कितना अचीव किया लोगों ने, व्हाट आर यू डूइंग. योर फादर शुड लुक एट माय सीवी एंड ही शुड गेट अ फील दैट जो हम लोग करते थे वो कुछ भी नहीं है जो आप लोग करते हैं. यू हैंडल communication so well. In our days, communication was not a very good requirement when we were struggling to have a career. You need to just study well, get into a career either engineering or medicine or in the civil services, and that's all. But in today's time, it's not enough. You need to be a very good communicator, and that you are. So he should be proud of you. Okay, thank you. We'll talk about your things first. But I was reading you are a doctor, then you cleared civil services, you became DGP. For those of you who don't know it, I think that's the head of police of the state. Yeah, I was the head of the police force. So anybody, हम तो क्या किन से डील कर रहे होते हैं, चलान कट गया, रास्ते पे रोक लिया किसी ने. We are always looking for that one number कि डायल कर लें और बच के निकल जाए यहाँ से. So I think वो एक फ़ायदा करके निकलूँ मैं आज अपने यहाँ से. Present generation is much smarter. They follow the rules and nobody touches them. We were a part of that generation which believed in breaking rules, not you. ये बहुत तारीफ कर रहा हूँ, हमारी जनरेशन की इतनी अच्छी है नहीं. बट अब अपने क्रिकेट के पैशन के बारे में बताइए. वॉज इट ऑलवेज देयर, लाइक कैसे आपकी वो जर्नी रही टू बिकम अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर? आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र, आई थिंक द national game in Maharashtra is cricket. Yes. And so I took to cricket very early at the age of 10 and I played junior inter-district for my district Satara in Maharashtra. And I played senior inter-district. But since I was good in academics, so I went to a medical college to do my MBBS. But I kept following cricket. It's a passion. It's my first love. And then how did you, like post-retirement, you decided to be an administrator? No, I've been part of cricket administration since last 20-25 years. I'm heading Bulandshahr District Cricket Association. That's my hometown. As president. Oh. So where do you belong to in Bulandshahr? The main city. You must have heard of Rajeshwar Mandir. Huh? I stay near that. Like my parents used to stay near the temple. How far from Kalam, Chora? 5 minutes, a small 5 city. minutes. Yeah, everything is 5 minutes from there. Okay. So I've been heading that district cricket association for last 20-25 years. And then I got into the UP Cricket Association. I'm a life member of UPCA. And now that you are the chairman of the league, for our audiences, if you can explain what exactly is the role of the chairman, what all do you need to take care of? Is it just during the league that you work, or throughout the year you have to be working towards making it a successful league? So, when I retired, Shri Rajiv Shukla ji, who is friend, philosopher, guide of UP cricket. Yeah. He has been secretary UPCA, he has been president, he has been representing UPCA in BCCI, he has held a lot of roles there, including IPL commissioner. So it was his dream that UP should have a platform where youngsters get a chance in large number. It's not that just you have 11 players and 4 in the reserves. So he had conceived this dream that we should have a UP T20 league. So once I retired, he asked me to head this league. So we started with forming a core team. So I had Ankit Chatterjee, my CEO. Then I had Sagar Mishra, GM operations. Sujit Srivastava, vice president. Then I got Siddharth Singh, vice president operations on board. So we formed a core team and we first framed the rules and regulations. It was not very difficult to form those rules and regulations because we took a lot of help from BCCI and it's on the format of IPL.
So we follow the same rules, and of course BCCI has a strong control over these state leagues. You have to take their permission, their approvals at every stage. So that we took, and we held the first season last year in Kanpur Green Park, because Green Park is the mecca of UP cricket. So we went there. And this season we have come to Lucknow. In season 1, we had little time to do the planning and all. The time was short. But this season we have had a lot of time, so we have planned everything very carefully. We have introduced a lot of technology in the league this time, conduct of the league. You must have seen we have DRS. There's a foreign guy, in fact, who's come. Yeah, there are 2 of them. Yeah. Like their name, Hawkeye. Yeah. They have a hawk's eye on the whole game. So the element of fairness is there. And when the element of fairness is there, the competition is tough. And when the competition is tough, good cricket comes. And when good cricket comes, people come to the stadium. So that is how the cycle is. Yes. So we are working on that cycle. You were talking about the rules of the league. One thing I found very interesting is there is this rule where you have to have a player from every district of the state. That's like a mandate, right? Yeah. So when we conceived this league, so Rajiv Shukla ji said that we should take the league to each and every corner of UP. So we have 2 teams from Eastern UP, Gorakhpur Lions from Gorakhpur, Kashi Rudras from Kashi. Then Central UP, we have 2 teams, Lucknow Falcons and Kanpur Superstars. And then we went to Western UP, Noida Kings and Meerut Mavericks. So we covered the whole region. And then we have in UPCA what we call mandals. So these are a cluster of districts in each mandal. On an average, there are about 2,500 players registered in each mandal. So we have given these teams n number of mandals to handle. So on an average, they have 2-3 mandals. So they have a large pool of players where they can go, and we had a rule that they will have to go and hold a talent hunt. They will have to go and look for talent. So they were supposed to look for 7 players, and they went and they held the trials. So even a player who suppose comes from a very challenged background, parents are not doing so well economically, he also got a chance to show his talent and get picked up. Of course, we held a grand auction of 18 players. Each team was supposed to pick up from grand auction 18 players. There also we gave a large pool. So they were supposed to pick up total 108 players. We gave a pool of 186 players for the auction. So that is why the spread is very good all over UP. We are covering the footprints of UP T20 League and now there in all the districts of UP. So sir, have you been to one of these trials? I have been to Gorakhpur, I have been to Shamli, I have been to Noida. Okay, so these trials were happening in these smaller towns as well? Yeah, they are happening everywhere. Oh, and is there a team that you support? I am not supposed to tell you this because this is there will be some element of conflict of interest. We have Hawkeye, na? That So, will ensure fairness. But I can tell you that I like certain players very much. Okay. They're playing good cricket. Like I see Priyam Garg is a very good captain. Yeah. He has a good sense of the game. He strategizes well. He plans well. He plots dismissal of the batsman. So he is very good in his captaincy. Then Rinku brings in that earthiness into the game. So Rinku is a great player. Then among the 2 stars, Samir Rizvi is very sophisticated saw. Swastik Chikara has the chuspa in him. Yeah. So he comes and I like his that signature style where he takes a ball like a archer would take and he does this. So after hitting a century, he did that. So that is a very good posture. It brings a lot of happiness in the crowd. Yeah. So he's a good player. And then amongst the youngsters, amongst the spinners, Jishan Ansari is a very good spinner. I think he has a bright future. He's a local boy. Yeah, he's a local boy. Then we have Kritagya Singh, very good all-rounder. I think he will again go well. He'll do well. So there are a lot of players like this coming up. UP T20 League has given a good platform to them to show their talent. Yeah, I've been interacting with a lot of players, and one thing they have all mentioned is that the opportunity to play with international players. There is a Bhuvneshwar Kumar that they are sharing dressing room with. They're playing against Rinku Singh. How do you see that? Because this is something rare. If they are playing domestic cricket, some of the big stars, they don't usually come. They drop out of it. But here, UPC have also ensured that big names are there and youngsters get to learn a lot from them. Of course, they learn a lot of good tips of the game of cricket. But what I see is that they inspire the youngsters to adopt the right kind of lifestyle. So when success comes, many young players can't handle that success. So when they watch these seniors, like you watch Bhuvneshwar Kumar, a very sober guy. Yeah. So he's going to have a very good influence on the youngsters. So that is what I think is the biggest benefit.
जिस तरीके से मतलब टीम्स को जो आपने डिवाइड किया, आप बता रहे थे कि 2 वेस्ट से रखी हैं, 2 सेंटर से एंड 2 ईस्ट से रखी है, इससे मेरे को एक ये चीज़ भी लगती है कि राइवलरी भी बहुत अच्छे से बिल्ड हो रही है. मतलब व्हेन यू आर इन सम अदर स्टेट देन तो यू आर फ्रॉम यूपी, बट व्हेन इट इज़ अबाउट बीइंग द बेस्ट इन यूपी देन टीम्स टेंड टू कम्पीट, फैंस ऑल्सो टेंड टू कम्पीट. मैं स्टैंड्स में से देखता हूँ कि थोड़ा लोगों के अंदर अपना सिटी का प्राइड निकल के बाहर आता है एंड फिर दे विल नॉट सपोर्ट मे बी अ रिंकू सिंह अगर उनकी टीम के अगेंस्ट खेल रहा है. तो हाउ डू यू सी दिस राइवलरी बिल्डिंग अप? इस बार की तो टैगलाइन भी है क्रिकेट का महासंग्राम. देखिए, इसका एक बहुत अच्छा कोलेटरल बेनिफिट है इस लीग का. जब मैंने शुरू किया अपना कैरियर एज ए पुलिस ऑफिसर, तो यहाँ एक ये फलाना गैंग, ये फलाना गैंग, तो इसकी राइवलरी थी. अब उसकी जगह किसकी राइवलरी आ गई? स्पोर्ट्स टीम्स की. तो ये बहुत अच्छा कोलेटरल जिसका बेनिफिट है. यूपी का माहौल भी बदल गया है. सो यंगस्टर्स की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, खेल की तरफ जा रही है, कैरियर बनाने की तरफ जा रही है. एंड आई हैव बीन रीडिंग दैट ये भी काफ़ी इंश्योर किया जा रहा है लीग के अंदर कि प्लेयर्स थोड़े से मोरल लेसन्स भी लेके जाएं. क्रिकेट को तो बोलते ही हैं जेंटलमैन्स गेम, तो उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है. उस पर भी एक मतलब ध्यान है. वी सी थिंग्स गेटिंग अगली ऑन अ क्रिकेट फील्ड, बट यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. वी सी गुड कमराडरी ऑफ द फील्ड, कॉम्पिटिशन भी हेल्दी है. उसको लेकर आपका क्या टेक है? हमने डे 1 से अपने रूल्स स्ट्रिक्ट रखे हैं. ऑन ग्राउंड misbehavior invites swift and severe penalty, and we have very good umpires. If you look at the standard of umpiring, Shamshuddin, yes, Anil Chaudhary, all of these are Anil international. Chaudhary, we got all these international umpires on board. Dhotris is there, Srivastav is there. So बहुत अच्छे umpires लाए, and they are all no nonsense umpire, and they have a name, they have a value, so they are guiding these youngsters to follow the rules of the game, and that is how we have very good on-field cricket. And players की हमने बात की, I see a lot of senior players in coaching staff as well. World Cup winner मदन लाल सर हैं, then और teams के भी जो coaches हैं वो भी काफ़ी senior players हैं. उनका impact कितना देखते हैं आप players पे? सीजन 1 में हमने ये रूल नहीं रखा था. सीजन 2 में हमने ये चेंज किया. सीजन 1 में था कि यू हैड टू टेक एक्स क्रिकेटर्स ऑफ यूपी इनटू द हेड कोचिंग स्टाफ, बट सीजन 2 में हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स को अलाउ कर दिया आउटसाइड यूपी. So that is why you have Madan Lal here. And I'm sure in season 3 you might see one of the franchisees getting a international coach outside India also. I think there is already a foreign guy with Yeah, some team. he Not is- coach, but I think he's in some capacity. He is there in the throw category thing. Throwdown Yeah, specialist, yeah. But next season you will have more good coaches, I'm very sure. Since you yourself have been a player, हाउ डू यू सी कि क्रिकेट में है ना कि देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट. जब प्लेयर खेल रहा है उसको अपना इंडिविजुअल माइलस्टोन भी दिखता है, बट अल्टीमेटली है तो टीम स्पोर्ट, तो उसको जिताना टीम को ही. देखिए, कोई भी अच्छा खिलाड़ी है उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि आपका और आपकी टीम का हित जो है दे आर वेडेड टुगेदर. आप अलग अलग नहीं सोच सकते हैं. तो जैसे हस्बैंड वाइफ अगर लड़ते हैं तो फैमिली सफ़र करती है. तो इफ आपका पर्सनल इंटरेस्ट और टीम का इंटरेस्ट क्लैश करेगा तो आप आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे. अगर आप टीम अच्छा करेगी तो आप अच्छा करेंगे. तो ये वैल्यू जो है हम खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है बाय लार्ज मैं देख रहा हूँ सभी टीम्स में ये वैल्यू सिप इन कर गई है. सो यू हैव प्लेयर्स नॉट लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड. यू डोंट सी देम लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड. दे आर लुकिंग एट द टीम स्ट्रैटेजी एंड दे आर परफॉर्मिंग टू द टीम स्ट्रैटेजी. तो ये बहुत अच्छी बात है. पर्सनल माइलस्टोन्स ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक इन टुडेज कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दे टेक यू वेरी फार. और आपने जैसे स्टेट पुलिस को भी हेड किया है, तो वहाँ के ऐसे कौन से आपके एक्सपीरियंस है जो आपको यहाँ पे काम आ रहे हैं? मैन मैनेजमेंट जो है वो एक क्रूशियल पार्ट होता है पुलिस फोर्स के हेड करने का और पुलिस फोर्स को चलाने का. और यहाँ तो बेसिकली और ज़्यादा है बिकॉज योर पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ अ एडवांटेज कि यू गिव ए ऑर्डर एंड इट इज़ कंप्लाइड. डंडा उठा सकते हो आप. हाँ, तो यहाँ नहीं. यहाँ तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको समझा बुझा के काम लेना पड़ेगा. तो बहुत क्रूशियल है यहाँ. कैप्टन के लिए भी क्रूशियल है, कोच के लिए भी क्रूशियल है, और जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी बहुत क्रूशियल है. तो इसीलिए मैंने कहा ना, आप अच्छा कर रहे हैं बिकॉज यू आर ए गुड कम्युनिकेटर. आपका फेवरेट मैच कौन सा है अब तक का इस सीजन का? इस सीज़न का जो सबसे अच्छा मैच था, जो जिसमें स्वास्तिक चिकारा ने 100 बनाए थे, वो मैच बहुत अच्छा था. इट वॉज वेरी पेसी, वेरी रेसी, लॉट ऑफ इवन द स्पेक्टेटर्स गॉट अ गुड गेम टू सी. तो दैट वाज अ वेरी गुड मैच. कुछ चीज़ों से हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. हमने सारे रूल्स जो है बीसीसीआई के स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए. इवन ऑन ग्राउंड बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर कि साहब आप इसकी बाउंड्री छोटी कर दीजिए, 55 यार्ड कर दीजिए, खूब चौके छक्के पड़ेंगे, लोगों को मज़ा आएगा. तो हमने कहा नहीं,
हम स्टैंडर्ड 70 मीटर रखेंगे। क्रिकेटर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बाउंड्री छोटी करना तो बहुत आसान है। ठीक है, आप देखेंगे कि साहब 20 बॉल में 150 रन बना दिए किसी ने, 25 बॉल में जो है 130 रन बना दिए, पर फिर वो क्रिकेट नहीं रह जाता, क्रिकेट का मजाक रह जाता है। तो वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, उसमें आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ से जब आप निकल के जाएं और यहाँ से मुश्ताक अली खेलने जाएं, तो वहाँ तो 55 मीटर की बाउंड्री नहीं मिलेगी, 55 यार्ड्स की बाउंड्री नहीं मिलेगी, वहाँ तो आपको 70-75 यार्ड्स की बाउंड्री मिलेगी। तो वहाँ कैसे फिर परफॉर्म करेंगे? तो ये जो आज आप 55 यार्ड की बाउंड्री पे छक्का मार रहे हैं, वहाँ आप कैच आउट हो जाएंगे। तो वो हमने बहुत स्ट्रिक्टली इंश्योर किया था। वी बिलीव इन यूपीसीए दैट क्रिकेट इज़ अ सीरियस बिजनेस। यहाँ क्रिकेट का मजाक नहीं हो सकता। तो बिकॉज इस पर काफ़ी लोगों की जिंदगियाँ निर्भर है। जब मैं क्रिकेट खेलता था, इट वॉज अ एमेच्योर स्पोर्ट। टुडे क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशन, यू मेक ए करियर आउट ऑफ क्रिकेट। सो देन यू हैव टू एंश्योर वेरी गुड कंडीशंस। जैसा आप ये इसका बता रहे हो कि हमने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं, आई थिंक उसी का रिजल्ट ये भी है कि यहाँ प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर वो आईपीएल ऑक्शन में पिक होते हैं, एंड देन इवेंचुअली उनको चांस भी मिलता है खेलने का, तो डिलीवर भी करते हैं। यस, वेरी ट्रू। ऑलरेडी वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल के जा रहे हैं। यस, वेरी वेरी ट्रू। एग्जैक्टली यही हमारी फिलॉसफी थी। तो राजीव सर ने हमें बताया था कि आप बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करिए। तो वी हैव एंश्योर्ड दैट। आई थिंक द होल ऑफ यूपीसीए and the governing council, which has about 7-8 members, 10 members, each one of them deserves this credit. They were all on same page. We ensured good playing conditions, we ensured exacting standards, we ensured good technology. So that is all about UP T20 League. That is how it is different from other state league. हाँ, वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी साइमल्टेनियसली जैसे इतनी सारी स्टेट लीग्स हो भी रही हैं, और उसमें ऑडियंस को भी चॉइस है कि भाई ये देखना है कि ये देखना है, जो न्यूट्रल है, जिनकी अपने स्टेट की लीग ही नहीं है, तो वहाँ पे what sets our league apart? The infusion of technology into the game, then exacting standards and element of fairness in our approach, that sets us apart. And so that is how you're seeing very good cricket. There is everything for the batsman, there is everything for the bowler, there is everything for the fielder. Now you see Ikana outfield, बंदा डाइव लगा रहा है, कोई चोट नहीं लगती। ये तो वर्ल्ड कप हुआ है यहाँ स्टेडियम में। तो इकाना का you can see ऐसे आउटफील्ड हमने रखा है, ऐसा स्टेडियम हमने चूज किया है। ऑब्वियसली यहाँ क्रिकेट फिर अच्छी होगी, अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी। प्लेयर्स की हमने बात की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। जब लीग हो रही है तो उसमें फ्रेंचाइजी ओनर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द वंस पुटिंग मनी इनटू इट एंड मनी मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। सो व्हाट इज रिलेशनशिप विद देम लाइक? वी आर होल्डिंग रेगुलर इंटरेक्शंस, मीटिंग्स विद द फ्रेंचाइजीज। वी टेक देयर कंसर्न्स वेरी सीरियसली। वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू देम, और उनके जो इश्यूज होते हैं उनको हम एड्रेस करते हैं, उनके सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं, तुरंत अपने पॉलिसी मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द ओनर्स। सो दे हैव फेथ इन अस, दे हैव कॉन्फिडेंस इन अस, और इसलिए वो बहुत अच्छा उनकी टीमें कर भी रही हैं। सो दे आर ऑल्सो गिविंग वेरी गुड स्टैंडर्ड्स एंड वेरी गुड एनवायरनमेंट टू द प्लेयर्स। वो सब अच्छे होटल्स में रखते हैं, उनके डाइट का ख्याल रखते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल रखते हैं, उनकी इक्विपमेंट का ख्याल रखते हैं। वीडियो एनालिस्ट जो है वो वर्ल्ड क्लास वीडियो एनालिस्ट दिए हुए हैं, तो खिलाड़ी अपनी कमजोरियां देख सकता है, उसमें सुधार कर सकता है। तो ये सब ओनर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ओनर्स आर कमिंग इनटू दिस गेम टू इम्प्रूव द गेम। आई डोंट थिंक दैट दे आर हियर टू मेक मनी और समथिंग, बिकॉज दे आर ऑल big businessmen. They are already doing well. They are not going to make money out of this team. It's their love for the sport. Yes, it is their love for the sport they are here. एंड जैसा आप बता रहे थे, यू हैव बीन इनटू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 20 years. आप अगर आप मेरे को जर्नी पे लेके जाओ यूपीसीए की, हम देखते थे पहले एक हमारी रणजी टीम थी जो उतना अच्छा नहीं कर पाती थी, देन वी स्टार्टेड रीचिंग फाइनल्स, कंसिस्टेंट हो गए, मुश्ताक अली में भी अच्छा कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली प्लेयर्स निकल के जा रहे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ अच्छा कर रहे हैं। सो व्हाट हैज दिस जर्नी बीन लाइक, जो अपवर्ड्स ही रही है ऑफ कोर्स? देखिए, जब मैं यंग एसपी था और क्रिकेट खेलता था तो बुलंदशहर का बहुत अच्छा क्रिकेटर था, बहुत प्यारा बंदा था, राकेश शर्मा। तो ही यूज्ड टू प्ले एज ओपनर इन यूपी रणजी टीम। तो पहले यूपी रणजी और 25 years बैक बहुत अच्छा लेवल पे नहीं जा पाती थी। अब हम लोग सेमीफाइनल तक जाते हैं, ऑल द फॉर्मेट्स, अंडर 19, अंडर 23, देन रणजी। इन ईच फॉर्मेट वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, और कई जगह हम लोग चैंपियनशिप भी लेके आए हैं। और अब ये स्टेट लीग इंट्रोड्यूस कर दी है, यूपी T20 लीग। तो बच्चों को बहुत वाइड जो है अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे अच्छे क्रिकेटर आ रहे हैं। लास्ट ईयर IPL में 12 खिलाड़ी यूपी से थे, और अभी आप देख रहे हैं कि कल रिंकू सिंह को इसके लिए दुलीप ट्रॉफी के लिए बुला लिया गया। यश दयाल टेस्ट टीम में आ गया, टेस्ट टीम में आ गया है। तो यूपी इज सीइंग
good times as far as cricket is concerned. एंड जैसे अभी तो 6 टीम है, इज देयर अ प्लानिंग इन फ्यूचर दैट नंबर ऑफ टीम्स भी बढ़ेंगे, बिकॉज यूपी सबसे बड़ा स्टेट है. देर सवेर तो बढ़ेंगे टीम, ऑफकोर्स 2 टीम ऐड करने का प्लान है, हाँ. बट आई कैन टेल यू कि नेक्स्ट ईयर होगा, सीजन हाँ, 3 में हाँ. होगा या सीजन 4 में होगा. व्हाट वी सी more important is that we bring in at least 4 women's team along with the men's team, because UP has a decent pool of our girl cricketers. तो उनका करीब 300-350 रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं, तो उनको चांस देना इम्पोर्टेंट है. तो उसके ऊपर काफ़ी गंभीरता से विचार हो रहा है. आप जैसे बता रहे थे कि सारी टीम ने अच्छे वीडियो एनालिस्ट रखे हुए हैं एंड आप गेम के साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो. सो अभी आप देखते हो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. मतलब अभी सिर्फ वो नहीं कि आपने स्ट्रैटेजी बनाई, वहाँ जान लगाई अपनी और स्किल दिखाई. डेटा ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. Data has become very crucial. They are using the right kind of software, and देर सवेर AI भी will be here. So AI will tell you कि आपने ये शॉट मारा है, तो इस एंगल पे मारना चाहिए था, ये शॉट अवॉइड करना चाहिए था. तो प्लेयर्स को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, एंड आई सी लॉट ऑफ प्लेयर्स आर टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. अभी एक जैसे बच्चा बहुत अच्छा कर रहा था, मुकेश कुमार, तो देयर वाज सम प्रॉब्लम विद हिज एक्शन. ही इज फ्रॉम सहारनपुर, यू मस्ट हैव डन ए स्टोरी ऑन हिम. ही यूज्ड टू सेल टी अर्लियर. तो उसको तुरंत वीडियो एनालिसिस में लगाया, नेट पे ले गए, उसको दिखाया, देखो तुम्हारे इस एंगल पे बॉल डिलीवरी होनी चाहिए और इतना आर्म स्ट्रेच होना चाहिए था. तो वो उससे उसको फ़ायदा मिला. एंड सिंस दैट डे, एंड आई मस्ट थैंक अवर अंपायर अनिल चौधरी, इज़ ए गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम. उन्होंने उसको हेल्प किया, उसको करेक्शन करने में, उस एक्शन में. उसके बाद से ही हैज़ बीन बॉलिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड विकेट भी ले रहा है. मतलब उसके थोड़े से चेंज ट्वीक करने से उसकी बॉलिंग में इम्पैक्ट नहीं पड़ा है. वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है. एंड जैसा आपने बोली दिया, टीम्स आगे बढ़ेंगी, बट उसके बाद भी आप देखते हो इतना क्लोजली लीग को, आपको कुछ लगता है कि ये कमी रह गई है, ये और हम बेटर कर सकते हैं? देखिए, इसमें लीग में जो हम लोगों को लगता है जिसमें हमें सुधार करना चाहिए आगे आने वाले समय में, हमारा इंटरेक्शन विद ऑडियंस, इसको हमें बढ़ाना चाहिए. और ये दोनों को एफर्ट करना पड़ेगा, फ्रेंचाइजीज को करना पड़ेगा और यूपीसीए को एज ए होल. जो यूपी T20 लीग की गवर्निंग काउंसिल है, we'll have to bring in more programs. We'll have to get more like you, people like you, so that who can be that bridge between the spectators and the teams, UPCA and the teams and the spectators. मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आप इतने टाइम से हैं UPCA के साथ इन्वॉल्व हैं अलग अलग कैपेसिटी में, वो जो जर्नी रही है UPCA की इन टर्म्स ऑफ से, लाइक पहले एक प्लेयर थे गोपाल शर्मा जिन्होंने इंडिया खेला, और वहाँ से अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि 12 लड़के IPL में खेलते हैं, इंडियन टीम में एक दो नाम कंसिस्टेंटली रहते हैं और टॉप परफॉर्मर्स भी रहे हैं, लाइक सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार. तो एक तो वो जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है यूपी क्रिकेट का, एंड फ्यूचर आप क्या देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड की, और कितना स्ट्रांग हो जाएगा यूपी का रिप्रेजेंटेशन इंडियन क्रिकेट में? अगर आप इसको थोड़ा हिस्टोरिकली भी देखें, हमारे देश में क्रिकेट क्या होती थी, पहले राजा महाराजा खेलते थे, उन्हीं के नाम से, महाराजा रंजीत सिंह के नाम से रणजी कप है, दिलीप सिंह भी उन्हीं की है. ये 2 ही ट्रॉफी होती थी जिसके लिए क्रिकेटर खेलता था, फाइट करता था. रणजी गेम्स, देन दिलीप ट्रॉफी, एंड देन यू ब्रोक इनटू द इंडियन टीम. अब देखिए कितना वाइड प्लेटफॉर्म हो गया. सो यू हैव नाउ मुश्ताक अली T20, यू हैव रणजी, एंड देन यू हैव अगेन दिलीप ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, और फिर IPL आया. IPL एक गेम चेंजर फॉर्मेट था जिसमें हमारे खिलाड़ियों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अपने स्किल्स को दिखाने के लिए. इसमें क्या था कि IPL ब्रॉट इनटू एन एलिमेंट ऑफ प्रोफेशन इन दिस, कि आप इसमें करियर बना सकते हो. जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो आप अपने पैशन के लिए खेलते थे, नॉट फॉर मनी. देयर वाज नो मनी इन क्रिकेट, बट नाउ you have money, so you can make a good career. And once you hang up your boots, then you have a lot of avenues in cricket. You become a coach, you become a mentor, you become a psychoanalyst for the players, you become a commentator, physios होते हैं, physios, then you become curator, and curator is a very now self-respecting and a demanding job. Because जब competition बढ़ा तो आपका pitch की quality भी अच्छी होनी चाहिए. You can't play on a pitch where 6 people get injured, या बॉल ही इतनी नीचे रह जा रही कि आप खेल नहीं पा रहे शॉट. तो क्रिकेट में बहुत सारे एवेन्यू हो गए. तो ये इंडिया का पूरा डेवलपमेंट इसी तरह से हुआ. जैसे अगर आप फुटबॉल की हिस्ट्री देखें यूरोप में
और फुटबॉल कैसे एक अपने आप में गेम के साथ साथ प्रोफेशन हो गया है, एंड यू मेक ए कैरियर आउट ऑफ इट, यू मेक ए लिविंग आउट ऑफ इट. Similarly, it has happened for cricket in India. And UP is also part of that change. So you have a lot of boys getting into serious cricket, professional cricket, and making a career out of it. So अब RP सिंह देखिए आप, कितना अच्छा बॉलर था इंडिया का, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया, देश के लिए नाम कमाया, प्रदेश के लिए नाम कमाया. नाउ व्हाट इज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मुंबई इंडियंस टीम. He does all the scouting, talent hunting for Mumbai Indians. Women's cricket के साथ भी involved थे. Then he is also a very good commentator. So इस तरह के बहुत avenues आ गए हैं बच्चों के लिए. So they can think of giving it the best try and make a career out of it. तो ये change सबसे बड़ा change है जो क्रिकेट का मैं देख रहा हूँ यूपी में एंड एट पैन इंडिया लेवल. और आपने क्यूरेटर्स का मेंशन किया, मैं तो मतलब ग्राउंड्स में इतना क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, जैसा वेदर हम देख रहे हैं जिसमें लीग हो रही है, देयर आर लॉट ऑफ रेन अफेक्टेड गेम्स एंड स्टिल इंश्योरिंग कि दिन के 2 मैच होना. दी अदर डे आई वाज वाचिंग एवरीवन वाज लाइक कि हम लोग ग्राउंड पे आते हैं 12 बजे 1 बजे अगर 2 बजे का मैच है, बट दोज गाइज आर देयर फर्स्ट टू कम ऑन द ग्राउंड एंड लास्ट टू लीव द ग्राउंड. यस, आई हैव बीन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद देम एंड लेट मी अश्योर यू, इकाना इज अ इंटरनेशनल स्टेडियम. यस, एंड इंटरनेशनल क्वालिटी स्टेडियम. केवल वो नाम का इंटरनेशनल नहीं है, आप उसका आउटफील्ड देखिए, आप उसकी जनरल सेटिंग देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स देखिए, उसके जो प्लेयर्स के लिए उनके रूम्स हैं वो देखिए, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है. मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया है इकाना स्टेडियम के अथॉरिटीज़ ने उस ग्राउंड को बनाने में. सो द ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी गुड. देयर इज़ रेन and it gets drained out in just 5 minutes. So you lose only 10-15 minutes game. And since there is a buffer of again half an hour, game बहुत majorly affect नहीं होता, abandon नहीं होता है. So the game may get reduced to 15 overs or 10 overs or 12 overs. So that is because of the quality of the stadium and the ground. Personally, I to feel कि Lucknow anyways sees so much cricket throughout the year. There are 7 to 8 IPL games, international games they also. If we take this to smaller centers ना, क्योंकि स्टेडियम्स तो हैं ही, जैसे भी ग्रेटर नोएडा इज होस्टिंग अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जहाँ पे कम क्रिकेट होती है. आई थिंक मोर पीपल विल कम एंड वॉच, क्योंकि उनके लिए दी सुपरस्टार्स आर इवन बिगर. इस बार हमारा प्लान था 2 टाउन्स में करने का, बट देन वी सॉ द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट. बट नेक्स्ट सीजन आई एम वेरी श्योर वी विल बी डूइंग इट इन 2 सेंटर्स. आई थिंक बिकॉज छोटे सेंटर में हम जाएंगे तो वी हैड दैट सेम ग्राउंड इन आवर माइंड जिस पे भी अफगानिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है. सो वी विल नेक्स्ट सीजन वी विल टेक इट टू 2 टाउन्स. अगर आपको ऑडियंस से कुछ कहना है कि व्हाई शुड दे कम एंड वॉच इट, इतनी अच्छी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं. यूपी में नहीं मिलेगी, आसपास के राज्यों में नहीं मिलेगी. तो उस क्रिकेट को आप देखने के लिए आइए. फॉर द लव ऑफ द गेम यू शुड कम टू द स्टेडियम टू वॉच दिस प्लेयर्स परफॉर्म एंड गिव देयर बेस्ट. सो दैट विल बी अ ग्रेट visual treat to you and to all the spectators. So I welcome all of them with open arms. On that note, sir, we will take your leave and thank you so much for your time, and the league is doing great. So many congratulations as well. Thank you. Thank you.